Okay, good evening. Hello, mic check. Check. Suraj has become professional, huh? Okay. Open to Luke chapter 10 लूका का 10वां अध्याय, and rise up in your places to read the word. और आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हो वचन पढ़ने के लिए। Bible college has begun, right? बाइबल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है। How many of you are in the Bible school? आप में से कितने लोग हैं बाइबल कॉलेज में? Just lift your hands. Wow, अपने great. हाथों को खड़ा करें। Yeah, I want to just congratulate you. Just clap for yourself. आप I अपने have लिए my- तालियां बजा सकते हो। Yes. Amen. Awesome. I mean, it's an amazing decision. ये बहुत ही अद्भुत निर्णय है। And remember, और याद रखना, you know, you are being noticed by demons. आप दुष्ट आत्माओं के द्वारा जाने जाते हो। So don't be surprised when things come against you during this semester. तो इस सेमेस्टर के समय में जब आपके विरुद्ध में कुछ चीजें आती हो तो सरप्राइज मत होना। Remember your decisions when you began. आपका निर्णय को याद रखो जब आपने शुरुआत की थी। And there can be many rationalizations. और बहुत सारे कारण आ सकते हैं। Remind yourself of अपने what आप you को believe स्मरण today. ये दिलाओ कि आप किस पर विश्वास करते हो आज, And finish the course. और उस दौड़ को पूरी करो। Just be there till the last class. और क्लास के अंत तक बने रहो उसमें। When you are halfway late from office जब ऑफिस से आधे रास्ते पर लेट to होते the हो आप, class, उस क्लास की ओर, don't say I have already missed half of it. Why should I go? ये मत कहना कि मैंने आधा क्लास तो मिस कर Just लिया और अब come. मैं क्यों जाऊं। आ जाओ सिर्फ। Right? This is amazing. ये अद्भुत है बहुत। Let's read this verse. लूका का 10वां अध्याय वचन को पढ़ते हैं। Luke chapter 10. लूका का 10वां अध्याय, Now it came to pass, verse 38, 38वीं आयत, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. You can read it. जब वे जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर पर उतारा। And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. मरियम नामक उसकी एक बहन थे, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसने उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उसे कहे कि मेरी सहायता करे। Okay, so he went before me, but bid her therefore that she help me. आप उसे कहिए कि वो मेरी मदद करे। What is ministry? सेवकाई क्या है? Like Martha is thinking that she is amazingly doing ministry. मार्था ये सोच रही है कि वो बहुत अद्भुत तरीके से सेवकाई कर रही है। Like I'm involved in projects. कि मैं किसी कार्य में मिला हुआ हूँ। Right? Mary is doing nothing. मरियम कुछ भी नहीं कर रही है। Lord, command her to get involved. प्रभु उनको आज्ञा दो कि वो मेरे साथ शामिल हो जाएं। Now this is what Jesus answered. और यहाँ पे यीशु उत्तर देता Verse है। 41. 41 And Jesus answered and said unto her, और यीशु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, Martha, Martha, you are careful and troubled about many things. मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, But one thing is needful. परंतु एक ही बात की आवश्यकता है। How many? कितने? सिर्फ One thing is needful. एक ही बात की आवश्यकता है। Do you lack something this evening? क्या इस शाम में आपको किसी चीज की कमी है? In your life, somewhere, somehow you feel that you lack something. आपके जीवन में कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि किसी चीज की कमी है। Jesus says one thing is needful. यीशु कहता है कि एक चीज की आवश्यकता है केवल। What is that? वो क्या है? We'll talk about that this evening. और आज शाम को हम उसके बारे में बात करेंगे। And Mary has chosen that good part, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है which shall not be taken away from जो her. उससे दूर नहीं लिया जाएगा। Father, we worship you this evening. पिता, हम आपकी आराधना करते हैं इस शाम में। We have an expectation from you. हमारी अपेक्षा है आपसे परमेश्वर। You have a table for us in the wilderness. आपने उस रेगिस्तान की जगह पर हमारे लिए मेज बनाया है।
You bring the water from the rock. आप उस चट्टान से पानी निकालते हो, So Lord, you can speak through me as well. तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो In परमेश्वर। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So, yeah, wow. You know, go to Mark chapter 10. मरकुस का 10वां अध्याय। I have many thoughts. मेरे पास बहुत विचार हैं, And Jesus says, You have many thoughts. और यीशु ने कहा आपके पास बहुत But विचार one हैं, thing is needful. लेकिन एक ही चीज की आवश्यकता है। So I'm wondering which is that one thing. तो मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी वो एक चीज है। Okay, here is this rich young ruler. यहाँ पे एक अमीर ये जवान लड़का है, You know, and this guy came to Jesus and और ये व्यक्ति यीशु के पास आता है he's wanting eternal life. और उसको अनंत जीवन चाहिए। And Jesus is the evangelist in this story. और इस कहानी में यीशु मसीह इवेंजलिस्ट है एक, And he does a very strange evangelism. और यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके का सुसमाचार देता है He उसे, almost pushed him away. जैसे उसे धक्का देकर दूर कर देता है। He gave a kind of an answer उसने एक ऐसे प्रकार का उत्तर दिया which possibly 99% people will actually go back from him. जिसमें 99% लोग दूर चले जाएंगे उसको सुनकर। The answer didn't seem to have an answer. एक जो उत्तर था वो उत्तर जैसा था ही नहीं वो। Like they had a discussion about the commandments. उनके बातचीत वार्तालाप हो रही थी आज्ञाओं के बारे And he में, says, yes, I have done them. और वो कहता है कि हाँ मैंने माना ही है वो बातें। And then they had a discussion about selling the property and giving it to poor. और बाद में संपत्ति को गरीबों को बेचने के लिए कहा, उसकी बात हुई, Social work. और सामाजिक कार्य करने के लिए, And it scared him off. और उसने उसे डरा दिया He was disappointed. और वो उदास हो गया And then he goes. और वो चला जाता है। And this is what Jesus says. और यहाँ पर यीशु ये कहता है In verse 21, 21वीं आयत में, Jesus beholding him loved him यीशु ने and उससे said unto him, यीशु ने उसको पकड़ उससे प्रेम करते हुए कहा, one thing you lack. एक चीज की तुम्हें कमी है। And sometimes we wonder, what is that? Did Jesus tell in this story what did he lack? क्या यीशु ने इस कहानी में बताया कि उसको किस बात की कमी थी? And can we contemplate? क्या फिर कमी सोच Is there सकते हैं something in Jesus' mind which he did not say in this verse? कि क्या यीशु के मन में कोई बात थी जो उसने इस वचन में नहीं कही उसने? Because later he tells him what to do. क्योंकि वो बाद में कहता है कि तुम्हें क्या करना है, Sell whatever you have, give it to poor, come and follow me. जो भी तुम्हारे पास है वो गरीबों को बेच दो, मेरे पीछे हो ले। But what did you lack? लेकिन तुम्हें किस चीज की कमी है? And I don't know, I felt there is a Holy Spirit connection between Mary in Luke chapter 10. और मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों का जुड़ाव है मरियम का और इसमें। One thing this guy does not have. एक चीज जो इस जवान लड़के के पास And नहीं है, Jesus says one thing is needful. और कहता है कि एक बात की आवश्यकता And है, Mary has that. और मरियम के पास And वो what है, she has और उसके पास जो है will not be taken away from वो her. उससे छीना नहीं जाएगा, And you and I have that. और आपके और मेरे पास है वो। And you know, I'm thinking of the theme of discipleship. मैं शिष्य बनाने के उस थीम पर सोच रहा था, Like maybe being a disciple. शायद शिष्य बनना Like उसके बारे में। I am a disciple of Christ. मैं मसीह का शिष्य हूँ, And I have a life which I live. और मेरे पास एक जीवन है जिसे मैं जीता हूँ। And John 8:32, यूहन्ना का 8:32, if you abide in my word. अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे। Like this is a mandate for a disciple. ये एक शिष्य के लिए जैसे नींव है Abiding in his word. कि तुम उसके वचनों में बने रहो। What does abide mean? बने रहने का मतलब क्या होता है? Maintain a close contact. उसके साथ एक करीबी रिश्ता रखो, Almost like non-stop. एक वो रिश्ता जो कभी रुकता नहीं, Almost like thing which does not break in the middle. ऐसी चीज जो कभी बीच में टूटती नहीं है। We live practical lives. हम जीवन जीते हैं प्रैक्टिकल। To Joshua, Moses said, और यहोशू को और मूसा God ने कहा, said, ये God परमेश्वर ने said, कहा, like, meditate on the book of the law day and night. इस व्यवस्था की पुस्तक पर तो दिन रात मनन करना। And what can come against this kind of life? इस जीवन के विरुद्ध में क्या आ सकता है, इस प्रकार के Like, जीवन के? What can come against my hunger for the word of God?
क्या मेरे भूख जो परमेश्वर के लिए, उसके विरुद्ध में क्या खड़ा हो सकता What है? can come against a habit of meditation? इस मनन की जो आदत है उसके विरुद्ध में कौन सी चीज खड़ी हो Like, सकती है? are there things in our lives which can hinder us? क्या हमारे जीवन में वो चीजें हैं जो हमारे लिए रुकावटें बन सकती हैं? 2 Corinthians chapter 10, दूसरा कुरिन्थियों का 10 talking about the warfare. यहाँ पे जो संग्राम के बारे में बात कर रहा है। Verse 3, तीसरी आयत, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, For the weapons of our warfare are not carnal, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, but mighty through God to the pulling down of strongholds, पर गढ़ों को गाड़ ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, इस हम कल्पनाओं और जो हर एक बात जो ऊंची है जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती हैं, which it looks like in this verse there are two sides. इस वचन में ऐसा लगता है कि जैसे दो तरफे से हैं Both are thoughts, और वो दोनों विचार हैं, and the sides are trying to take a higher position. और ये दोनों साइड के विचार जैसे उच्च स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे Like, हैं, and they are both in my mind. और वो दोनों मेरे मन में हैं, And there is a warfare, और उनके में संग्राम हो रहा है, the battle of ideas, और विचारों का जो युद्ध है वो चल रहा है, battle of thoughts. विचारों का And it युद्ध। says और ये this कहता है warfare is not carnal, कि ये जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, not fleshly. वो शरीर से द्वारा नहीं है, You cannot discern it outwardly. आप बाहरी रूप से देखकर उसे पहचान नहीं सकते, It's right inside. वो अंदर है, It's in the arena of our mind. वो हमारे मन के आंतरिक And जगह the पर है, disciple learns to fight this warfare. और शिष्य इस संग्राम में लड़ना सीखता The है, warfare of ideas. जो विचारों की जो संग्राम होते हैं उसमें, And it says we cast down the imaginations. और कहता है कि हम हर एक उन कल्पनाओं को जैसे And every high thing. खंडन करते हैं, हर कोई So चीज जो that ऊंची means है। on this side is the knowledge of God. इस जगह पर जैसे कि परमेश्वर का ज्ञान है, And on the other side is a high thing. और दूसरी जगह पर जैसे उच्च स्थान And बातें हैं, imaginations. और कल्पनाएं हैं वो, And we cast them down. और हम उनका खंडन करते हैं, Because they are trying to exalt themselves against the knowledge of God. क्योंकि वो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के ज्ञान के We are विरुद्ध में। bombarded in our present age. हम इस समय में, इस वर्तमान के समय में हम पर आक्रमण It's होता good है, to cut off some of those links, तो इसीलिए कुछ बातों को तोड़ना अच्छा रहता है, It's बेहतर होता wise है। for a believer to know what do I entertain as a routine in my life. ये विश्वासी के लिए एक बुद्धिमत्ता की बात है कि ये जानना कि वो अपने जीवन में कौन सी I चीजों know of को, many godly believers who do not have cable television in their house. मैं बहुत सारे विश्वासी लोगों को जानता many हूँ of them. उनके पास केबल टीवी नहीं है घर And I में, believe they are not fools. और मैं कहता हूँ कि वो मूर्ख And नहीं है। please don't get me wrong. I mean, somebody can, like, you can make your choices. आप अपने निर्णय बना It's not सकते written हो, in the Bible, okay? ये बाइबल में लिखा नहीं है, And for somebody it may be required, जो किसी के लिए आवश्यकता पड़ सकती है, but for somebody it's a waste. लेकिन किसी के लिए वो But वेस्ट है। we have to recognize that that's one channel. लेकिन हमें पहचानने की जरूरत है कि वो एक चैनल है। If my mind is a tank and there are many pipes connected, then one of them is this which is feeding my mind. मेरा मन एक टैंक के समान है जिसमें बहुत सारे रास्ते आ रहे And हैं, लेकिन मैं these उसे बंद days करता we हूँ। have a lot of them right there in this little device. और आज के दिन में इस छोटे से यंत्र में बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं, Like YouTube and Google YouTube and and Facebook and WhatsApp, WhatsApp, all ये of them. सारी बातें ये। And as a wise man, I need to learn to cut off some channels. और बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते मुझे कुछ रास्तों को काटना पड़ता है, Because some of these channels clog the real channel. क्योंकि ये रास्ते कुछ सच्चे रास्तों को रुका That देते one हैं। thing which is needful, एक चीज जिसकी जरूरत है, which Mary has chosen. जिसको मरियम ने चुना है, She is sitting under the feet of Jesus and listening to his words. वो यीशु के चरणों पर बैठकर उसकी आवाज को सुन रही है। By the way, when Jesus lived here, जब यीशु मसीह इस धरती पर he जिया, was walking on the earth, वो पृथ्वी पर चला, and the devil comes against him in और Matthew chapter 4. शैतान मत्ती के 4 में उसके विरुद्ध में आता है,
And this is amazing what he said. और ये बहुत अद्भुत है वो जो कहता है, Because if he said it only to us, it was okay. क्योंकि अगर उसने हमसे ही कहा होता तो ये ठीक था Man should not live by bread alone. कि वो केवल रोटी से वो जीवित नहीं रहेगा। Oh, yes, it's so logical, right? हाँ, ये कितना सोचने वाली We बात है। understand that as a हम समझते हैं believer. उसे विश्वासी होने के नाते। But he did not say it as in the Sermon on the Mount. लेकिन उसने वो जो पर्वत पर जो दृष्टांत दिया उसमें उसने नहीं कही ये He did बातें। not say it to the assembly of believers. विश्वासियों के बीच में उसने ये You know बातें नहीं कही। whom he said it to? जानते हो किससे कहा ये बात? He said it to Satan, applying it personally to himself. उसने शैतान को बात कही, अपने जीवन में उस बात का लागू That करके। blows me away. और ये इससे मैं बहुत ही This अचंभित tells होता me हूँ। that Jesus, while he lived on the earth, ये कहता है कि जिस यीशु इस धरती पर जिया, he fed himself consistently from the words from the Father. उसने अपने आप को जो पिता के पास के वचन थे उससे अपने आप को भरता रहा। He's वो। saying these 40 days, और वो- devil, you have not been able to get at me because I'm living by the word of my और Father. वो कहता है कि इस 40 दिन शैतान तू मेरे पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं इस पिता के वचनों के द्वारा जी रहा हूँ। In John chapter 6, I'll यूहन्ना come के- back to 2 Corinthians 10, यूहन्ना का 6वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों में हम वापस आएंगे। but John 6, यूहन्ना का 6वां अध्याय, Jesus does another, you know, he's a pastor here. ये इस जगह पर वो एक पास्टर के नाते जैसे हैं। In Mark 10, he was the evangelist. मरकुस के 10वें अध्याय में सुसमाचार And he बांटने वाले थे evangelized the way we would never evangelize. और उसने वैसे सुसमाचार बांटे जैसे हम कभी नहीं Often बांट how we सकते। evangelize, please come. He's a person. हम कैसे सुसमाचार बांटते हैं कि आ जाओ आप लोग। Somehow. But कैसे न कैसे Jesus' करके। evangelism was not a soft evangelism. लेकिन यीशु का इवेंजलिज्म वो बहुत ही And here, कोमल as नहीं a था। pastor, और यहाँ पर वो पास्टर होने के नाते here कह there रहा are है। 5 consecutive verses, यहाँ पर 5 वचन एक के बाद एक, verse 51 onwards, 91 आयत के बाद and up to 56. 56वें पंक्ति तक He says 5 times, 5 बार वो कहता है, unless you eat my flesh जब तक तुम मेरे शरीर को ना खाओ and drink my blood, और मेरे लहू को ना पियो, you don't have any part in me. तुम्हारा कोई मुझ में हिस्सा नहीं है। And why did he say something like that? उसने ऐसा क्यों कहा ऐसा? And one time should have been good enough. Let the remaining portion be explained by Apostle Paul. एक बार से ठीक है, लेकिन बाकी चीजें तो पौलुस भी कह सकता है। But no, लेकिन नहीं, he said it over and over again. उसने वो एक के बाद एक बार फिर It से was कह रहा है almost वो। like boxing punches. वो जैसे एक बॉक्सिंग If पंच some of करना them था। can bear the first one, then at least give him the second one. अगर उसमें से कोई एक को सहन कर सकता है तो दूसरा भी देते Let's see हैं। how many will go. देखते हैं कितनी भी सहन कर सकता है वो। Oh, that was an amazing test of discipleship. ये डिसाइपलशिप का बहुत ही अद्भुत टेस्ट था। Offense is a great test in discipleship. डिसाइपलशिप में ऑफेंस होना बहुत ही बड़ी Psalm टेस्ट है। 119 verse 165. भजन संहिता 119 Great peace 61 have they who love God. उनके पास अद्भुत शांति है जो परमेश्वर से प्रेम करते Nothing हैं। can offend them. उनसे कोई भी बात बुरी नहीं लगती। I believe a lot of times God allows offenses in our lives. मुझे लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बार ये बुरी लगने वाली बातों को लाता है। Like your pastors saying, I mean, I've heard this said a few times. मैंने बहुत अक्सर सुना है ये बातों को। It can also happen to you. वो आपके साथ भी हो सकता है। Your relationship with your spiritual friends can get challenged. आपका रिश्ता आपके आत्मिक दोस्तों के साथ चुनौती से भर सकता है। You can be on the verge of being offended. और आप उस किनारे पर आ सकते हो जहाँ पर आपको ठेस लग रही है उनकी बातों से। But when we are a disciple, लेकिन जब हम शिष्य होते हैं, we learn not to get offended. हम बुरा ना मानना सीखते We हैं। learn how to process information. हम और इन जानकारियों में कैसे बढ़ना है हम वो सीखते हैं। We learn to cast down imaginations. हम उन कल्पनाओं को नीचे उतारना जानते हैं। They rise up. वो ऊंचा उठने की कोशिश You know, करते हैं। in the process of being a disciple of Christ, मसीह का उस शिष्य होने बनने के इस रास्ते पर, you know, I believe a lot of times God allows purposeful offenses. मुझे लगता है कि परमेश्वर बहुत बार जानबूझकर ये बुरी लगने वाली बातें देता Things है which are not comfortable to my flesh. जो मेरे शरीर के लिए आरामदायक नहीं है, But I need to be there. लेकिन मुझे वहाँ रहने की जरूरत है And I need to come back. और मुझे वापस आने की जरूरत I है need to sit under. और मुझे नीचे बैठने की जरूरत I है need to hear in humility. और नम्रता से सुनने की जरूरत I है। need to receive the word not
as the word of men, but as the word of God. मुझे उन वचनों को ऐसे सुनने की जरूरत है कि वो मनुष्य के नहीं लेकिन परमेश्वर And के God हैं। teaches me. और परमेश्वर मुझे And सिखाता John है। 6, Jesus did something like और that. यूहन्ना 6 में यीशु ने ऐसा कुछ किया And many went away. और बहुत सारे चले गए And दूर। then he calls his disciples, और वो the फिर वो four अपने ones. शिष्यों को बुलाता है, Will you also go away? क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? That's a test. और यहाँ पे एक परीक्षा है। Now here is verse 7. Yeah. 57. 57 वचन। As the living Father has sent me, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है and I live by the Father. और मैं पिता से जीता हूँ। What does that mean? इसका मतलब क्या है? We live by oxygen. हम ऑक्सीजन के द्वारा जीते We हैं, live by water. पानी के द्वारा जीते हैं, Man lives by bread also. और मनुष्य रोटी से भी जीता है। Right? He says, I live by my Father. कहता है मैं अपने पिता से जीता हूँ। This is amazing. ये बहुत ही अद्भुत है। Like he lived as a perfect man on this earth. वो सिद्ध मनुष्य के रूप में इस धरती पर जिया। He was God himself. वो खुद परमेश्वर था And in a sense, he did not need any external resources. और एक तरफ से देखे तो उसको बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं थी। In a sense, he could fully survive on his own. और एक तरीके से जैसे वो अपने आप से सब कुछ कर सकता था, जीवित रह सकता था। But what does he say? लेकिन वो क्या कहता है? Not occasionally. और किसी का कभी कभी नहीं, I live by my Father. मैं पिता के कारण जीवित हूँ। I want to understand this. मैं इस पंक्ति को And I think समझना चाहता हूँ। it may take my whole life for me to understand पूरा this. जीवन लग सकता है मुझे इस बात को समझने के लिए। But then he adds something in that verse. और उसमें कुछ वो जोड़ देता है उसी पंक्ति में। He says, so he that eats me, वैसा ही वह जो मुझे खाएगा even he shall live by me. मेरे कारण जीवित रहेगा। This is amazing. ये बहुत अद्भुत है। This is something which is in a sense a mystery. ये एक तरफ से जैसा एक रहस्य है, But in a sense it's very simple. लेकिन एक तरफ से ये भी कि ये बहुत आसान But है। this is the life of a disciple. लेकिन ये शिष्य का जीवन है। I live by this. मैं इसके कारण जीवित हूँ। Jesus Christ, यीशु मसीह he's gone, he's in heaven. वो स्वर्ग में है, But he places a table before me every day. लेकिन वो मेरे सम्मुख हर दिन मेज बिछाता है। It's a real table. और वो एक सच्चा मेज है। There are real words from God coming on the table. और उस मेज पर परमेश्वर से सच्चे वचन आते हैं। And you and I can be easily negligent. और हम उस चीजों को नकारने की कोशिश कर सकते हैं आसानी You से। and I'm not like, this is not my style. I'm not putting a guilt trip. Okay. मैं यहाँ पर ग्लानि नहीं डाल रहा हूँ। We all are. हम सारे हैं। Okay. Let's not say maybe. शायद We नहीं, all are negligent. हम में से हर कोई उसे I don't know नकारने की how बातें much करते हैं। crumb falls on the ground. मैं नहीं जानता कितनी बातें वो मेज से नीचे गिर जाती होंगी। But what we end up grabbing is a lot. लेकिन जिसे हम पकड़ के रखते हैं वो बहुत God ज्यादा is है। faithful. परमेश्वर विश्वास He योग्य है। speaks to us. वो हमसे बातें करता He है feeds us. और वो हमें भोजन खिलाता है And that is needful. और इसकी आवश्यकता है And somebody lacks that. और किसी को उसकी आवश्यकता है And all he needed to do. और सारी चीजें जो If उसे you करने ask की me in the जरूरत है। story, what did rich young ruler need to do? अगर आप मुझे पूछो कि इस कहानी में उस जवान लड़के को क्या करने की I जरूरत है, pictured myself many times in that place. मैंने अपने आप को उस जगह पर रखकर And सोचा। I say, what would I do? मैंने सोचा मैं क्या करूं, And I realized, I would be shameless. और मैं कहता हूं कि मैं शर्म से भर जाऊंगा। I would say, I can't sell anything. मैं कुछ नहीं बेच सकता, I'll hide behind Jesus. मैं यीशु के पीछे छुप So he can't जाऊंगा say anything to me. तो ताकि वो मुझसे कुछ भी ना I'll कह sit सके। there. और मैं वहीं I'll बैठा hang around. मैं आगे पीछे घूमते रहूंगा उसके। If I won't get the place on the table, I would sit in the corner. अगर मुझे मेज पर जगह नहीं मिलता तो मैं कॉर्नर में बैठ जाऊंगा। But I am hungry. लेकिन मैं भूखा हूँ And that is needful. और इसकी And आवश्यकता that है is what he lacked. और इसी की आवश्यकता थी उसे। And hopefully he came back. और शायद से वो वापस And आया। some scholars believe it was Mark. और कोई विश्वास मानते हैं कि वो And मार्क if it था। was Mark, it's a great story. अगर वो मरकुस था तो वो बहुत ही अद्भुत He had a कहानी है। habit of leaving and then coming back. उसके पास आदत थी वापस आने की और जाने Right? की। He left back Apostle Paul in the mission trip and then he came back. वो पौलुस को मिशन ट्रिप में छोड़ देता है लेकिन फिर से वापस आ जाता है। Right? And he came back to Apostle Paul in the end of his life. और पौलुस के पास उसके जीवन के अंत में आता है मिलने के लिए। So this is amazing. ये अद्भुत है।
We are in Bible school, हम बाइबल स्कूल में हैं and you are saying you are a pastor. और हम कहते हैं कि तुम पैस्टर हो। I teach Bible school. मैं बाइबल स्कूल But सिखाता I am हूँ, in Bible school. लेकिन मैं बाइबल स्कूल में To हूँ। me, graduation doesn't matter. मेरे लिए ग्रेजुएशन कोई It मुद्दा नहीं है। matters, ये मुद्दा है, but in this sense, it doesn't matter. लेकिन इस तरीके से सोचो I तो उसका want to be मुद्दा in नहीं। Bible school all my life. पूरे जीवन भर बाइबल स्कूल में रहना चाहूंगा मैं। You can have any number of degrees. कितने भी आप डिग्री पा सकते हो। I just love being there, and it's not मुझे बहुत pretension, प्रेम by है। the way. ये केवल And I अपने hope आप से it नहीं कह never रहा हूँ। remains pretension. It never becomes pretension. और ये ऐसी I really, to me, in the ministry which I do, to me, sitting in the Bible classes is the most important part of the ministry I do. मेरे सेवकाई में जो कर रहा हूँ मैं, उसमें बाइबल कॉलेज में बैठना मेरे जीवन का सबसे Market, I could बड़ा have said many महत्वपूर्ण स्थान things. है। मैंने बहुत सारी बातें कह Winning सकती हूँ, souls, discipling people, लोगों this, को शिष्य there, बनाना, बहुत सारी बातें कह सकता हूँ there मैं, can be a long list. और बहुत लंबी लिस्ट हो But if सकती you है। ask me, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, Monday evening in the chapel meeting, I said this. मंडे इवनिंग को मैंने चैपल मीटिंग में कहा, Friday morning discipleship class by Pastor Schaller. फ्राइडे मॉर्निंग का डिसाइपलशिप क्लास पास्टर शाले के द्वारा I am going to be there 7 a.m. मैं 7 बजे सुबह रहूंगा I उस am जगह पर। excited about it. और मैं इसके लिए I'm बहुत ही not going there उत्साहित as हूँ। a duty. मैं ड्यूटी की I'm तरफ से not नहीं going जा there to रहा become a godly example. या फिर गॉडली एग्जांपल बनने के लिए नहीं No, जा रहा I हूँ। am excited about what we are going to listen. मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि मैं क्या सुनने God is वाला हूँ। going to feed my soul. परमेश्वर मेरे प्राण को भरना चाहता है। One thing is needful. एक चीज की आवश्यकता I है, need it. मुझे उसकी जरूरत And है। you know what happens? और जानते हो क्या होता There है? is a battle being fought. एक युद्ध लड़ाई जा रही है, There is a लड़ी जा battle रही for है। my soul. मेरे प्राण में हो रही है I वो। need to learn to think correctly. मुझे बराबर सोचने की जरूरत है, But I don't have it in me to really learn thinking. लेकिन ये मेरे अंदर नहीं है कि मैं सीखूं कि कैसे मैं सोचना चाहिए मुझे। You know, soft जानते हो? things don't teach me how to think properly. जो सॉफ्ट चीजें हैं, कोमल चीजें, वो मुझे बराबर सोचना नहीं सिखाती। Entertainment doesn't teach me to think properly. मनोरंजन मुझे सही तरीके से सोचने की मदद नहीं करता। Now this is interesting. और ये बहुत ही दिलचस्प है। Charles Spurgeon used to say this. चार्ल्स फर्जन ये कहते थे I won't अक्सर, remember the quote exactly, पूरी तरीके से मुझे याद नहीं है वो, but something of this order. लेकिन वो इस तरीके से कुछ कह रहा One thing I can remember, था। एक चीज जो मुझे याद है, he used to tell the pastors, वो पास्टर्स को कहते थे हमेशा, your task is तुम्हारा काम ये to है, feed the sheep, not to entertain the goats. तुम्हारा काम भेड़ों को खाना खिलाना है, ना कि तुम बकरियों को मनोरंजन कराओ। And one of the things he also said, और उसमें एक बात और कही थी, that one of the great success which devil has had in our centuries, हमारे इस शताब्दी में जो सबसे बड़ी विजय जो शैतान ने पाई है वो ये है, that church resembles more a place of entertainment rather than the place of fellowship. संगति के जगह होने के बदले उस जगह पर केवल मनोरंजन की बातें होती है। But entertainment cannot teach me how to think. लेकिन मनोरंजन मुझे सिखा नहीं सकता कि मुझे कैसे सोचना है। And as a pastor, when I bring the message, it's very challenging sometimes. और जैसे पास्टर होने के नाते ये बहुत ही चुनौती से भरा होता है ऐसे I संदेशों को want to लाना। punch my message with some illustrations and stories. मैं अपने संदेशों को कुछ उदाहरण और कहानियों से भरना Naturally चाहता हूँ। speaking. साधारण तरीके से कह रहा हूँ And मैं। sometimes it seems a little more comfortable idea. और कभी-कभी ये बहुत ही कंफर्टेबल आइडिया लगता है, Those seem to be a better crutches to, structure my message. क्योंकि ये एक तरफ से मुझे आकार बनाने में संदेश का अच्छा लगता है, अच्छा होता है। And sometimes God doesn't give me peace for all that. और परमेश्वर कभी-कभी मुझे इन Even सब if I बातों के bring लिए some शांति नहीं stories, देता। I don't tell them. भले ही मैंने कुछ कहानी बनाई है, लेकिन मैं उसे बताता नहीं, Because my task is not to make you feel good. क्योंकि मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको अच्छा महसूस My कराऊं। task is to bring the word. मेरा काम ये है कि मैं वचनों को ले And it आऊं। is the Spirit who does what He does. और ये वो आत्मा है जो करता है जो उसे करना है। And it is not the most polished messages which bring the life transformation. और ये बहुत ही अच्छे संदेश नहीं है जो जीवन को परिवर्तन करते हैं। Paul says, पौलुस कहता है, when we came to you, we came with fear and trembling. जब हम आपके पास आए तब हम थरथरा कर डर कर आए थे, But there was also a manifestation of the power of the Spirit. लेकिन आत्मा के उस सामर्थ का भी प्रदर्शन था And वहाँ I पर। need that in my life. और मुझे उस चीज की जरूरत है मेरे जीवन में। I need that a lot as I follow Christ. और मुझे उसकी बहुत जरूरत है जैसे मैं उसका पीछा करते जा रहा हूँ। And what happens is जो होता यह है कि that there is this battle एक युद्ध चल रहा है in my mind. मेरे मन में,
And in my mind, I learned to worship God. और अब मैं मेरे मन में परमेश्वर की आराधना करना सीखता What is the हूँ। greatest commandment? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? Love the Lord your God अपने परमेश्वर से पूरे with all your heart. पूरे हृदय से। We know it. हम जानते We हैं, understand. Yes, हम heart is समझते involved. हैं कि हाँ दिल बहुत ही महत्वपूर्ण है, All your soul, पूरे प्राण से all your being, basically, और सब मतलब पूरी तरीके से, all your strength, पूरे सामर्थ से all your mind. और पूरे मन से। And how do you worship the Lord with all your mind? और आप कैसे उसकी आराधना करते हो पूरे मन से? Let's make it simple. आसान रूप में Developing the right thinking, एक सही प्रकार का सोच उत्पन्न करना, meditating on the right things. सही चीजों पर मनन करना। When the offense is brought, जिस समय मुझे वो ठेस लगने वाली बात लेके आते हैं मेरे when सामने, a pipeline of idea is poured into my tank, जब मेरे उस टैंक में एक विचारों की बहाव आता है, then I learn to process it. मैं उसमें उसको क्रिया करने में Then I सीखता हूँ, then I think correctly. और मैं फिर सही तरीके से सीखता हूँ, Do you realize सोचता हूँ। that's worship? क्या जानते हो कि ये आराधना है? As I receive a message, और जैसे मैं संदेश को पाता हूँ, I go back मैं वापस जाता and हूँ I go it over again. और मैं फिर उसके बारे सोचता हूँ, I open my Bible और मैं अपने बाइबल को खोलता हूँ and I make the message personal. और मैं उस संदेश को व्यक्तिगत बनाता हूँ। What pastor might have preached is good, जो पास्टर ने संदेश दिया वो अच्छा था, but then there is a link between pastor and me. लेकिन वहाँ पर एक जुड़ाव है पास्टर के और मेरे बीच में, That's the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा है। And I sit before him. और मैं उसके सम्मुख I बैठता हूँ open the word. और मैं वचनों को I खोलता go हूँ over things again. और मैं उन चीजों पर बार बार Maybe सोचता God हूँ। gives me fresh rhema based on what I heard. और जिस पर मैंने सोचा परमेश्वर मुझे उस पर विचार God देता है, रिमांस देता complements है। the idea which has been communicated. जो विचार मुझ तक पहुंचाया गया है उस पर और बातें जोड़ता है। It's amazing. और ये बहुत It's अद्भुत worship. है, ये आराधना है It's worship. और ये आराधना है। Right? We call it like devotion, like my morning devotion. हम उसे मॉर्निंग डिवोशन जैसे कहते हैं, But we can also have लेकिन हम ये devotions भी हो through सकता the है day. पूरे दिन भर में डिवोशन कर सकते हैं हम। In the Bible school this semester, बाइबल स्कूल में इस सेमेस्टर में I want you to desire certain things. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ों की तीव्र इच्छा रखें। You want to learn to abide in the word day and night in your mind. आप अपने मन में दिन रात परमेश्वर के वचन से बने रहना चाहते But हो, there is another thing you learn. लेकिन वो दूसरी बात है जो आप सीखते हो, Is the word on your lips. वो शब्द जो वचन आपके होठों पर है। That's amazing. ये बहुत अद्भुत Let's है। open one verse in Old Testament. पुराने नियम में एक पंक्ति है, Ecclesiastes chapter 10. सवोपदेश का 10वां अध्याय। I read this verse day before yesterday, और मैंने पिछले दिनों में ये वचन को पढ़ा and the Spirit just made this verse very, very powerful for me. और आत्मा ने मुझसे बहुत अद्भुत तरीके से बात की इस वचन के And द्वारा। I am very determined in my spirit to actually make this more and more real in my life. और मैं बहुत ही निश्चित हूँ मेरे हृदय में कि मुझे अपने जीवन में पूरा सच्चे जैसे वो करना। Verse 12. 12वीं आयत, The words of a wise man's mouth are gracious. बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है। Actually, my Bible has a mark there and says, the words of a wise man's mouth are grace. बुद्धिमानों के जो वचन होते हैं वो अनुग्रह है। Wow. God ministers into my heart and mind, परमेश्वर मेरे मन में और मेरे दिल में बातें करता है, and then those words get processed and they come up to my lips. वो वचन प्रक्रिया होती है और वो मेरे होठों पर आ जाते हैं। The words of grace. अनुग्रह के शब्द वो, Grace comes on my lips. अनुग्रह मेरे होठों पर आता है। This is the objective of Bible school. बाइबल स्कूल का उद्देश्य ये है, This is the objective of my devotional life. और मेरे डिवोशनल के जीवन का ये है मेरा उद्देश्य। This is the product of fighting the right warfare in my mind. और मेरे मन में सही संग्राम लड़ने का उद्देश्य ये है। I have words on my lips. मेरे होठों पर वो शब्द हैं, And those words are grace words. और वो अनुग्रह के शब्द हैं, That's amazing. और ये बहुत अद्भुत है। We need, like
the country, the society, the church needs people who know this. इस देश को समाज को इस चीज को जानने की जरूरत है। And I know you know this. और मैं जानता हूँ कि आप ये And जानते I हो। know you are here. You are a Wednesday night crowd. और आप इस मंगलवार बुधवार को आने वाले सभा हो के लोग हो। Like, yes, you are committed. Yes, you are disciple. हाँ, आप शिष्य हो और आपने निश्चय करके रखा But a है। lot of times I have seen myself taking this area for granted. लेकिन मैंने अपने आप को बहुत बार देखा है कि मैं इन जगहों का फायदा उठाता It's हूँ। easier to be on the pulpit and preach grace. ये बहुत ही आसान है मेरे लिए कि मैं पुलपिट पर आकर अनुग्रह का प्रचार करूं। But then on a day-to-day basis, लेकिन हर प्रतिदिन के आने वाली चीजों as a में lifestyle, और इस जीवन में जैसे जीते हैं, having grace on my lips. अनुग्रह के वचन मेरे होठों पर This होना। is amazing. ये बहुत अद्भुत है। Jeremiah 31. यिर्मयाह का 31वां अध्याय। I'm closing, but few verses just for your. कुछ वचनों। Jeremiah 31 verse 2. यिर्मयाह का 31वां अध्याय और दूसरी आयत। Those who escaped the sword found grace in the wilderness. जिन्होंने Is it? Yeah, thus says the Lord, the people which were left of the sword found grace in the wilderness. यहोवा से 31 का दूसरी आयत। यहोवा ये कहता है कि जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। You know, if you are experiencing the victory in the warfare, अगर आप उस संग्राम में विजय को महसूस कर रहे हो, you experience grace in your life. आप अपने जीवन में अनुग्रह को अनुभव कर रहे हो। You know what does abounding grace mean? जानते हो भरपूरता से अनुग्रह का मतलब You क्या know होता what है? does greater grace means? जानते हो महान अनुग्रह का मतलब क्या होता है? It's a discipleship. ये डिसाइपलशिप है। I believe discipleship, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो शिष्य बनना है बनाना, grace अनुग्रह is very important in discipleship. बहुत ही महत्वपूर्ण है डिसाइपलशिप में। We call our church name is Greater Grace. क्योंकि हमारे चर्च का नाम ग्रेटर ग्रेस है। You know what this tells me? जानते हो मुझसे क्या कहता है? There is a lot more to discover for me. बहुत सारी बातें हैं जिसके मुझे खोज निकालना There है। is an और ask. It says, let's apply Romans 5:20. रोमियो का 5:20, When sin abounds, grace abounds much more. जहाँ पर पाप बढ़ता है वहाँ पर अनुग्रह और बढ़ता है। And that does not mean इसका मतलब ये that I नहीं है need to sin more to कि discover मुझे more ज्यादा पाप grace. करना पड़ेगा कि मुझे ज्यादा अनुग्रह But मिले। it does mean this, लेकिन इसका मतलब ये है that wherever I am in my life today, जहाँ कहीं भी मैं अपने जीवन में हूँ आज, there is more grace वहाँ पर अब वो ज्यादा which अनुग्रह I have है not yet seen, जिसे मैंने देखा भी नहीं which I have है, not yet understood. जिसको मैंने समझा भी नहीं है। And there is an amazing sense of discovery. और यहाँ पर हम बहुत ही अद्भुत चीजों को खोज There is an निकालते हैं। amazing expectation from God. परमेश्वर से अद्भुत उम्मीद रखते हैं इन बातों And there is में। an amazing desire to move forward. और बहुत ही अद्भुत इच्छा होती है आगे चलने There की is an इसमें। amazing hunger to open the word. और वचनों को खोलने के लिए अद्भुत भूख रहती है। There is a like, you know, when I come here to Andheri once in a while to preach, जब मैं अंधेरी में आता हूँ I always have this you know fallback option. ये मेरे पास एक पीछे हटने का एक रास्ता रहता And you है। know what is that? जानते हो क्या है Let's वो? preach the last week's message here. पिछले हफ्ते का संदेश यहाँ पर But I प्रचार don't करता हूँ। like doing that somehow. लेकिन मुझे पसंद नहीं आता वो कैसे भी। Not that anything wrong with that. उससे कोई गलत नहीं है। Just some things the Lord personally says to you, so you just परमेश्वर don't आपसे do कुछ it. व्यक्तिगत कहता है और आप नहीं करना And चाहते। I don't like preaching my previous message at another place. और मैं अपना पिछले संदेश को दूसरी जगह पर प्रचार करना पसंद नहीं करता। Sometimes it's challenging. कभी कभी ये चुनौती Like से for भरा रहता example है। today, जैसे कि आज के दिन के लिए as I can, I'm having fun this you know right now. इस समय में मुझे अच्छा लगता है। I could have picked up another message which I preached in last few weeks, पिछले कुछ हफ्तों में जो मैंने and which संदेश was दिया a मैं very उसको ले strong सकता था, temptation. जिसमें वो बहुत ही लालसा से भरा हुआ I था। said, Lord, not today. मैंने कहा परमेश्वर आज No. नहीं। Like today seemed the most appropriate day to do it. और आज का दिन सबसे अलग बहुत ही अचंभित दिन लगता है जिसमें मैं नहीं But कर you know पाऊंगा। लेकिन जानते हो क्या? I've always
I'm learning this. मैं सीख रहा हूँ। There's a world of, like the Lord has so much ahead for me. परमेश्वर ने मेरे सम्मुख इतने सब When कुछ रखा I है will कि open my Bible, जब मैं अपने बाइबल को खोलता I'm हूँ, going to see things which I have not yet seen. मैं उन चीजों को देख पाता हूँ जो मैंने देखी I'm नहीं है। going to understand things about God which I have never मैं उन understood. बातों को समझूंगा जो बातें मैंने कभी समझी नहीं है। I will have ability to minister the way I have never ministered. मेरे पास वो क्षमता आएगी सेवा करने की जैसे मैंने कभी नहीं की थी, And it is. और वो है वैसा। It's amazing. ये बहुत अद्भुत है To me that's overwhelming. और ये मेरे लिए बहुत ही अचंभित है। That's why we इसीलिए हम just like fellowship. हम संगति करते We हैं, come together हम साथ में आते हैं more and more. ज्यादा से ज्यादा। Like Bible college is one way to fellowship more regularly. बाइबल कॉलेज एक जरिया है जिससे आप बहुत अक्सर संगति कर पाते हो, Like otherwise twice a week, right? नहीं तो फिर हफ्ते में 2 बार, Maybe one outreach. शायद से एक आउटरीच But पर। how about Tuesday evening class? कैसे होगा अगर आप ट्यूसडे इवनिंग को क्लास ले How रहे हो, about Friday night class? फ्राइडे के रात को शाम को आप क्लास ले How रहे हो, about after Sunday service, Sunday afternoon class? संडे आफ्टरनून की क्लास करते This हो। is amazing. ये बहुत अद्भुत है। You know, today I was listening to somebody. मैं आज किसी को सुन रहा था, You know, they said there is slight difference between the 21st century church, the way we conduct our services, and how early church conducted their services. और वो कहते हैं कि आज की जैसे सभाएं हो रही हैं और जो पहले सभाएं होती थी उनमें कुछ अंतर है। And this man was explaining. और ये व्यक्ति And he एक्सप्लेन said कर रहा था, the early church, और जो पूरा पहले वाले after the कलीसिया, church used to get over, चर्च खत्म होने के बाद they used to have a question answer kind of a mechanism. उनके पास प्रश्न उत्तरों का एक समय And I होता said, था। wow, मैं कहता था वाह, this is amazing. ये अद्भुत है। Maybe Dr. Stevens understood it. शायद डॉक्टर स्टीवन इससे समझ We गए। call it rap sessions. और हम उसे रैप सेशन कहते हैं। And we, like, I would ask, why won't somebody want to do it? और मैं ये पूछूंगा कि क्यों कोई ये सब चीजें नहीं करना चाहेगा। I'm hungry. मैं भूखा हूँ। I want to, and it's not just about I want to talk. ये केवल इसलिए नहीं कि मैं ही बात करना चाहता I हूँ, want to listen. मैं सुनना चाहता I हूँ want to receive. और मैं ग्रहण I करना want चाहता to be हूँ। with those people who are thinking in the word. मैं उन लोगों के साथ बना रहना चाहता हूँ जो वचनों में सोचते I want हैं to be with those people who are really thinking. और सचमुच में सोच रहे हैं, And they उनके साथ रहना impart चाहता to हूँ me. और वो मुझसे बातें करते हैं। And this is amazing. और ये अद्भुत है। I discover grace. और मैं अनुग्रह को खोज पाता One हूँ। last verse in अंतिम वचन Acts chapter 14. और प्रेरितों के काम का 14 अध्याय। Verse 3. तीसरी पंक्ति। Therefore, long time they abode, speaking boldly in the Lord. वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हिवाए से बातें करते थे। We want to be like that, right? हम ऐसे होना चाहते हैं, We want to be long term, हम लंबे समय तक रहना and चाहते we हैं want to be bold. और हम हिवाए से बड़े Right? हिम्मत से बात We करना want to be चाहते हैं used by the Lord. और परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं। Here is the secret. यहाँ पे एक सीक्रेट है। Here is in Mary and Martha's story, it is Mary who is really doing the ministry. मरियम और मार्था के उस कहानी में वो मरियम है जो सच्ची सेवकाई कर रही है। How do you minister? आप कैसे सेवकाई करते हो? By abiding, उसमें बने रहकर, by being there. उस जगह पर रहकर। It doesn't matter, it's not so important what you do. ये इतना मुद्दा ऐसे भरा नहीं है कि आप क्या करते हो। In fact, sometimes what I do can hinder me. कि कभी कभी मैं जो करता हूँ वो मुझे मेरे You लिए रुकावट realize बन that सकता है। that can be a subject in itself. जानते हो वो भी एक इसमें अपने आप What में एक विषय I do है। can hinder me if God did not give me capacity for that. अब जो चीज के लिए परमेश्वर मुझे क्षमता नहीं देता, अगर मैं वो चीज करता हूँ तो वो मेरे लिए People get रुकावट proud. है। लोग गर्व से भर जाते People हैं get judgmental. और न्याय करने लगते हैं People get self-centered. और स्वार्थी बन जाते People हैं get comparative. और एक दूसरे से तुलना करते हैं। All these are और ये सारी बातें, like, oh, this happens. और ये होता है। But what is real ministry? लेकिन सच्ची सेवकाई क्या है? Abiding.
बने रहना, staying there, उस जगह पर रहना, being where God has called me, वैसी उसी जगह पर रहना जहाँ पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, gathering together often, और अक्सर एक दूसरे से मिलना being a listener. और सुनना। And then it says, और फिर वो कहता है which gave testimony unto the word of his grace. जिन्होंने उसके अनुग्रह के लिए गवाही दी, अनुग्रह के शब्दों में। What is the ministry? सेवकाई क्या है? That the grace will be on my lips. कि अनुग्रह मेरे होठों पर रहेगा। Word of his grace. अनुग्रह के शब्द, अनुग्रह के वचन। Like if I have grace on my lips, अगर मेरे होठों पर वो अनुग्रह के वचन I हैं, have ministry. मेरे पास सेवकाई है, This is what is needed. और इसी की ज़रूरत है, And this is what we have. और ये हमारे पास है, And this is what we are growing in. और इसी में हम बढ़ रहे हैं। Right? Amen. आमीन। Let's pray. Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद देते हैं। Jesus said this, if you are my disciple, take up your cross and follow me. यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। And cross represents the grace. और वो क्रूस अनुग्रह को दर्शाता है। Our mind is, as a disciple, is on your grace. हमारा मन वो शिष्य के समान है जो अनुग्रह पर है। We think grace. हम अनुग्रह सोचते हैं, We receive grace. अनुग्रह को ग्रहण करते हैं, We impart grace. अनुग्रह को बांटते हैं। We see grace in your word. हम उनके आपके वचनों में अनुग्रह देखते हैं, We see grace on the cross. और हम उस क्रूस पर अनुग्रह को देखते हैं। If anybody in this room, you are a first time visitor, अगर आप इस रूम में हो और आप पहली बार आए हो, or you have come before, या फिर आप पहले आ चुके हो, but you have never accepted Christ personally in your life, लेकिन आपने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से यीशु को कभी स्वीकारा नहीं है, then maybe a lot of what I spoke did not make so much sense to you. और शायद से मैंने जितनी भी बातें कही आपको समझ में नहीं आई, But you have a desire in your heart, लेकिन आपके दिल में एक इच्छा है, a desire for God. ये परमेश्वर के लिए वो इच्छा। You see something which you also want it. आप किसी चीज को देखते हो जिसकी आपको चाहत है, It is Jesus who can give it to you. और वो यीशु है जो आपको दे सकता है, He is the living God. और वो जीवित परमेश्वर है। Call upon His name. आप उसके नाम पर बुलाओ। Get saved this evening. इस शाम को आप उद्धार में आइए। Believe in the Lord Jesus Christ यीशु मसीह पर विश्वास and कीजिए receive salvation. और उद्धार को ग्रहण If you कीजिए। want to do it, अगर आप वो करना चाहते हो, then pray this prayer in your heart. आप अपने दिल में ये प्रार्थना कर सकते हो। Jesus, यीशु, I believe in you. मैं आप पर विश्वास करता हूँ। Jesus, यीशु, I believe in you. मैं आप पर विश्वास करता हूँ। And if that's your prayer, अगर आपकी ये प्रार्थना anybody in है, this room, इस रूम में कोई है, if you have prayed that prayer just now, अगर आपने ये प्रार्थना कभी की है, can you just lift your hand for a moment? क्या आपने एक क्षण के लिए अपने हाथ को उठा सकते हैं? Anybody in this room कोई इस रूम में है, prayed that prayer? किसी ने जो प्रार्थना की है, ये In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।